चलो क्या. So trigonometry is something that trigonometry is basically a branch of mathematics that deals with right angle triangles. So if I were to create, no, I'll do it. I'll do it. You don't have to do it. If you do it, then I'll have to revoke your access. So don't do it now. I'm giving you access because you guys are matured. Okay. All right. Okay. Chalo. So if I were to make a right angle triangle like this, okay, which is right angled here. Right angle का मतलब ये 90 डिग्रीज है, राइट. सो अब इसके अराउंड हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं और इससे जो रिलेटेड चीजें हम करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. बट व्हाई डू वी स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री इज बिकॉज द टर्म्स लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा are going to be used a lot in projections. So what happens is कि फिजिक्स में अगले साल तुम 11th तक में अगर तुम फिजिक्स लेते हो तो you'll figure कि अगर कोई फोर्स लग रहा है इस तरफ, फॉर एग्जांपल if there's this force this side but there is a body that has to be brought this side. So basically ये जो फोर्स इस तरफ लग रहा है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये. तो वो tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा ये सब ट्रिग्नोमेट्री से निकल आता है, राइट. तो इसलिए आज इस पर्टिकुलर ग्रेड 10th में we'll study a lot about trigonometry. And once you've become awesome at trigonometry, you'd realize that you can actually solve a lot of real life problems which are out there using only trigonometry. In fact, I'll ask you a question just now, which was asked to me, I think, in one of the amazing exams called KVPY. So the question is this, all right? Question is that suppose you're standing on Juhu Beach, all right? तुम जुहू बीच में खड़े हुए हो और तुम्हारे पास एक 1 meter stick है, 1 meter stick, okay? And you've got a stopwatch with you. stopwatch है तुम्हारे पास और एक 1 meter stick है और तुम सनसेट के टाइम पे खड़े हुए वहां पे. तो तुम क्या क्या नाप सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे? तुम क्या क्या, व्हाट ऑल कैन यू मेजर? कम ऑन टेल मी, व्हाट ऑल कैन यू मेजर इफ यू गॉट अ मीटर स्टिक, जिससे तुम, मीटर स्टिक का मतलब एक स्टिक है जो 1 मीटर लॉन्ग है और उसमें मार्किंग्स है बेसिकली, तो उससे तुम हाइट नाप सकते हो अपनी, है ना. और अगर तुम्हारे पास स्टॉप वॉच है तो उससे तुम टाइम नाप सकते हो, ऑफ कोर्स. तुम सनसेट के टाइम पे खड़े हुए जुहू बीच पे, और क्या क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडिंग देयर, जस्ट स्टैंडिंग देयर? व्हाट ऑल कैन यू कैलकुलेट? टेल मी. Yeah, tell me. So maybe the distance of the sun and your position. So Murtuza is saying distance of sun, distance to the sun. Okay, how? Distance from the water body. हाँ सही बात है, water body से तुम कितना दूर खड़े हो. Wind speed कैसे नापोगे सनत कुमार? Speed of waves उसको भी कैसे नाप? So बताओ कैसे नापोगे? अच्छा बताओ. So Murtuza, come in. You said you can measure temperature. नाप सकते हो. Shardul is saying temperature. Temperature कैसे नापोगे शार्दुल? Tell me, how will you find temperature? बताओ. बताओ. Murtuza, you said distance from the sun. How will you figure out distance from the sun using only these equipment? Tell me. Speed of waves. बताओ. Wind speed. Chalo, wind speed. Sanat Kumar, tell me. How will you figure out wind speed? The number of plane passing in a minute. हाँ. Rishi, that's a good answer. You can figure out number of planes passing in a minute. Correct. वो तुम count कर सकते हो. Length of shadow according to very good. Shaurya Verma said length of shadow, which is very good. Length of shadow हम नाप सकते हैं. Very good. Distance from the sun is impossible. आराध्या is saying. Impossible मत बोलो, मतलब कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तुमको ना पता हो कैसे निकालना है ना. So we can figure out maybe. Our height, yes, Anshul Aditya, our height we can find. Very good. Wind speed can explain. चलो बताओ रुद्रा, wind speed कैसे पता चलेगा? बताओ. Sir, we How will you can figure out take wind some speed? sand. We can take some sand in our fists and then leave it, and then we can get the direction also. And we have a meter stick, right? And we also have a stopwatch. So Very perfectly nice. timing it, and then Very we can nice. find the speed of the wind. Very nice. But there's only one problem, रुद्रा. जो wind speed होगी जरूरी नहीं वो sand की speed हो, है ना.
तो विंड तो अपनी एक स्पीड में चल रही है, तो जरूरी नहीं उतनी स्पीड में ही वो सैंड को भी लेके चले, है ना? हमने एनर्जी पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी, तो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन मास। तो विंड का मास कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसका मास ज्यादा है सैंड का, है ना? ओके, the direction of wind then. राइट, डायरेक्शन पता चल जाएगा, करेक्ट। हाइट ऑफ अ पर्सन यू सेड, वेरी गुड। लेंथ, हाइट ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग, अच्छा, ओके, वेव स्पीड। सो हियर्स द क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ अर्थ using only the meter stick and stopwatch? Now the thing is, with trigonometry and a lot of analysis and strategy, you will be able to figure out radius of Earth standing at Juhu Beach. That's the beauty, that's the power of trigonometry. All right, so that's what we're going to do. All right, and since I've got this mic, I can also bring in some suspense, that you can find the radius of Earth. All right, so we'll do that. But before that, let's do the basics of trigonometry first. All right, to start with. Can I ask you one thing? Huh? What? Can I ask you one thing? Yeah. The first time I saw you were in 8th grade, we were shown a YouTube video about sound. Okay. The first time I what? The first time I what? The first time I saw you was in 8th grade. We were shown a YouTube video on sound. Right. So like the song in the video, was it like recorded on this mic you're using right here? Yeah. So we have multiple mics. I don't know if this was this mic that we used, but we have a series of Rode mics. We have Rode NT1A, NTG3. Yeah. Very good, you remember. That's awesome. In fact, would you guys want to record something? We should. We'll float an internship. I can beatbox in it. Yeah, you can beatbox in it. Absolutely. In fact, एक काम करते हैं. I'll give this mic out as a prize maybe towards the end of this year. What? But who earns the most amount of gold stars? You figured, right? I told you we're going to do fiesta. So after 2 weeks, we're going to do a party where we'll sing, dance, and everything. And you're going to get bronze stars, silver stars, and gold stars, right? So basically, जो week 1 का homework करेगा, top 20 students, उनको एक unlock कर लिया, और week 2 करोगे तो दूसरा unlock हो गया. और अगर तुमने week 1, week 2 के homework submit किए हैं, तो you will get to write TWA Fortnite challenge. All right, so that challenge will have like very tricky questions and stuff. It will not be from workbook. And if you get the rank among top 10, तो तीसरा unlock हो गया. तो जिसने इनमें से कोई भी एक चीज अनलॉक की है उसको मिलेगा ब्रॉन्ज स्टार, जिसने 2 चीज अनलॉक की उसको मिलेगा सिल्वर स्टार, और जिसने तीनों अनलॉक कर लिया, मतलब उसका टॉप 20 में होमवर्क भी था और टॉप 10 उसका चैलेंज में भी आया, तो उसको मिलेगा गोल्ड स्टार. एंड द नंबर ऑफ गोल्ड स्टार्स दैट यू कलेक्ट थ्रू आउट द ईयर, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट अ प्राइज एट द एंड ऑफ this session. So it's going to be fun. तुम लोग को मजा आ रहा है ये सब करने में? I thought you'll really like it. So I thought, Yes, I have inspiration to complete my homework now. Yeah, exactly. Even I got so motivated, to do this. Yeah, we've got points. Yes, so gold star is 100 points, silver star is 70, and the bronze star is 50. So the number of stars that you collect throughout the year, finally you will have certain amount of points, and obviously then we're going to do a lot of things. एक तो पार्टी भी हम करेंगे बहुत जोर शोर से, जैसे हम वो करते हैं, कौन सी वाली, winners dinner, right? Okay, now coming back to trigonometry. All right, this is how it is. It always works on a right angle triangle. तो ये right angle triangle है, इसका ये एंगल को हम सपोज थीटा मानते हैं. कोई भी थीटा का मतलब हो गया जैसे एक्स वाई होता है ना, so this is theta. All right, theta is any random angle. This can be 45 degrees, 30 degrees, 60 degrees, कुछ भी हो सकता है, right? Can theta be equal to 95 degrees? No, sir. Yes, no. Can theta be 95 degrees? No. Why? Because ये already 90 हो गया है ना. ये अगर 90 हो गया तो बाकी जो बचा है, ये अगर 90 हो गया तो ये प्लस ये 90 होना चाहिए, और ये ऑलरेडी 95 हो जाएगा, तो ये प्लस करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना. तो बेसिकली एक ट्रायंगल पे तो सिर्फ मैक्सिमम 180 डिग्रीज हो सकता है. So this can be less than 90 degrees, right? Okay. All right. What about if this is an obtuse angle? Obtuse angle हो सकता है ये? Yes. Obtuse नहीं हो सकता ना. Obtuse का मतलब No, sir.
like more than 90, sorry, I confused less with than that. 180. हाँ ठीक है। तो अगर हम ऐसा एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, तो उसमें ये एंगल ऑब्ट्यूज हुआ, तो अगर इसका कुछ निकालना होगा हमको, तो हमको फिर ये एंगल के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। ये होगा 90 और यहाँ पे ऐसे ले लेंगे इसको 90, है ना। तो बेसिकली वो सब बाद में देखते हैं। चलो, तो ये जो थीटा है, ओके, ये जो थीटा है, अब इसके ऊपर हमने कुछ फॉर्मूले हमको बेसिकली पता चले। तो वन इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो नीचे है उसको हम कहते हैं बेस। जो थीटा के साथ लगी हुई लाइन है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। थीटा और 90 के बीच वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं बेस। थीटा और 90 के जो साथ वाली लाइन नहीं है, ये, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और इसको हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको तुम ऑल्सो यू कैन कॉल इट ऑपोजिट, इसको तुम कह सकते हो एडजेसेंट, ओके, और वो है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, बताओ फटाफट। Opposite upon hypotenuse. करेक्ट। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। और तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा, एच एच कट जाएगा, तो पी बाई बी आएगा, है ना, पी बाई बी, ठीक है, गॉट इट। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिखते हैं क्या, पता है क्या? 1 upon Sir, so in which way we should remember it? Like, yeah, perpendicular. Sir, in which way we should remember it? Like perpendicular or opposite वाला? यार कि मैं तो like परपेंडिकुलर base- करता हूँ, मुझे परपेंडिकुलर अच्छा लगता है, तुम्हें कुछ और अच्छा लगता है तो तुम देख लो। सर थोड़ा नीचे ले सकते हो क्या वाइट? ओके, Like it's ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। दिस इज ओके नाउ, दिख रहा है क्या? yes. ओके, ठीक है। तो साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक, ठीक है, थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सारी अभी तो बहुत चालू ही हो रहा है, बट ये सब रिमेंबर करना पड़ेगा तुमको। ट्रिग्नोमेट्री इज इजिली गोइंग टू टेक एटलीस्ट 1 month टू बिकम अ मास्टर एट इट, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है तुमको बोर्ड एग्जाम तक भी ना बने। बहुत इसको देख के बहुत एंग्जाइटी होती है लोगों को, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे हम चलेंगे, और जो आज होमवर्क मिला है तुमको वो कंप्लीट कर लेना, तो फायदा होगा उससे, ठीक है। ऑलराइट, डन हो गया। नेक्स्ट ले, Yes. चलो, तो चलो मेरे को बताओ अब, सपोज I make a triangle, okay, this is a triangle, this is 90 degrees, okay, and this is 3, this is 4, and this, okay, actually you know this is 3, this is 4, that's it. तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा बताओ? 5. वेरी गुड। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि अपना वो वाला फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो h इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो गया 5, है ना। अब इसका मेरे को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा
कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब निकाल के बताओ। चलो फटाफट, टेल मी। सर कौन सा एंगल थीटा है? हाँ, कौन सा एंगल थीटा है? वेरी गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, डन एवरीवन। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा, लेट्स सी। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये है ना, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो गया 4/5, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 3/5। और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 4 अपॉन बेस, ये है ना। और कोसेक थीटा कितना हुआ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, 5/4, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, 5/3, वेरी गुड। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3. नहीं, tan थीटा इज 4/3 ना, तो 3/4 sorry, 3/4. है ना। ओके, डन, ऑलराइट, गुड। सनत, here all these people have given correct answer, all right. Avni, Hit, yeah, Ritu, Soumya, good. Shardul, Smera, Ritu, Hiya, Ayush, Ritu, Shaurya, Manasi, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है, गुड। ठीक है, तो आया समझ में, ऐसे करना होता है। डन, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सॉरी वर्मा, करेक्ट। Sir, can I, sir, like if we're getting like the value of sine or something as a fraction, do we like divide it to the lowest term or do we keep it just like that? हाँ, divided To the lowest term, right? Okay, okay. या राइट। So सेम 3, 4, 5 जैसा ही हो गया, है ना। Yeah. So sine theta is 4/5. That's what I'm getting. 3/5. How is it 3/5? सी थीटा का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है ना, ऑपोजिट Oh. अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स द होल पॉइंट, इसलिए सवाल I दिया was considered. Shit, I messed up. हाँ। क्या डन। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, -90 होगा ये, हाँ, है ना। ये हो गया 6, ये हो गया 10, तो ये हो गया 8, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। 6² + 8² = 10², ठीक है। अब अगर साइन थीटा है 6/10, तो साइन 90 - थीटा कितना होगा, 8/10, है ना। और 8/10 क्या था, कॉस थीटा, है ना। आ रहा है समझ में। तो साइन 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके। एंड कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू, अभी ये कॉस 90 नहीं, कॉस 90 - थीटा, इसका कॉस करेंगे तो क्या होगा, 6/10। कॉस 90 - थीटा करेंगे तो 6/10 आएगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ईशान शेख आ रहा है, ये देखो कॉस क्या हो गया, कॉस 90 - थीटा, ये कॉस, इसका कॉस निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 6/10, है ना। तो कॉस 90 - थीटा 6/10 थीटा के टर्म्स में क्या होता, वो साइन थीटा होता। तो कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। और tan 90 - थीटा,
अब ये कौन सोच के बताएगा? tan 90 माइनस थीटा कितना होता? एटलीस्ट छोड़ो ये सब छोड़ो, एक ये बनाता हूं मैं ऐसे, तो आसान पड़ेगा तुमको। ये देखो, अगर ये है थीटा, ठीक है, तो ये हो गया इसका ए बी सी, ठीक है, और ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, इस केस में साइन थीटा कितना होगा? चलो बताओ फटाफट, इस केस में साइन थीटा कितना होगा? वेरी गुड, ए बाई सी, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। किस किस ने दिया? मुर्तुजा, मनसी, नव्या, रितुष, सौम्या, ऋषित, शंकदीप, पिया, हेत, भाव्या, स्मेरा, कृष, ठीक है। ओके, इसका कॉस थीटा कितना होगा भाई? इसका कॉस थीटा होगा बी अपॉन सी, है ना, और इसका tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब a बाई बी, है ना। अब वही अगर हम साइन 90 माइनस थीटा के लिए लें, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा के लिए लें, tan 90 माइनस थीटा के लिए लें, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ? b बाई सी, है ना। वेरी गुड, b बाई सी, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस वेरी गुड। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ? a बाई सी, और tan 90 माइनस थीटा b बाई ए। अब b बाई सी कहाँ दिख रहा है तुमको? ये कॉस थीटा है ना, ये देखो, है ना, और a बाई सी इधर दिख रहा है, और b बाई ए इसका उल्टा हो गया, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटर्न एज tan 90 minus theta can be written as cos theta. Cos 90 minus theta can be written as sin theta. And tan 90 minus theta can be written as a by b का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है? cot थीटा, है ना, ठीक है। सिमिलरली ये तो sin 90 माइनस थीटा, अभी इसी का उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको दोनों को 1 अपॉन कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। आ गया समझ में? इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये इतना मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लेना। म्यूट कर लो यार अपने आप को, बहुत आवाज आ रही है। और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अभी इसका कोसेक क्या लिया, इसको 1 अपॉन किया तो कोसेक हो गया है साइन का, तो इधर कॉस का 1 अपॉन हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एंड इधर tan 90 माइनस थीटा को 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा इज tan थीटा, ठीक है। ये भी नोट कर लो, इसको भी। नोट हो जाए तो बता देना। So ये जो अभी formulas लिखे हैं, so I'm having confusion in understanding those. So could you just explain it with the diagram, क्योंकि ये जो मैं confuse हो रहा हूँ। ये बनाया तो, ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अभी यहीं से तो मैंने इसको निकाला ना, साइन 90, साइन थीटा कितना है? a बाई सी, साइन थीटा ये थीटा है, इसका ऑपोजिट क्या है? a, और हाइपोटेन्यूज है c, ठीक है, a बाई सी, और ये 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है? b बाई सी, लेकिन b बाई सी है कॉस थीटा,
तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। The problem begins when इसके ऊपर हम लोग 1 डालते हैं, न्यूमरेटर में किसके 1 ऊपर? डालते हैं। किसके ऊपर? sin 90 माइनस थीटा 1 बाय sin 90 माइनस थीटा, तो उसमें नहीं, थोड़ा अभी पहले ये confusion इतना है ये समझ में आ समझने गया। में। दिस हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये या ओके, नाउ टेल मी या sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, cos थीटा को इधर ले आओ और sin थीटा उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन cos थीटा को क्या बोलते हैं? sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं? cosec 90 माइनस थीटा। ओके, इससे पहले वाले चैप्टर उसमें बताया था ना मैंने, 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा बोलते हैं। तो 1 अपॉन साइन, अब थीटा तो कोई भी डिग्री हो सकती है ना, तो यहाँ पे कोई भी डिग्री क्या? 90 माइनस थीटा। तो जो भी 1 अपॉन साइन ब्ला इज इक्वल्स टू कोसेक ब्ला, इट्स लाइक दैट। तो ब्ला इज हियर 90 माइनस थीटा। ओके, लाइक दिस। थैंक यू सर, आई अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ओके। Is everything clear? Mika, getting it? Okay. आ गया सबको, सब कुछ समझ में? चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो, ले लेता हूं। अब ये भी एक हम एक अच्छी चीज करने वाले। अब सपोज ये है, ठीक है, ये थीटा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, गॉट इट। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। और हमको पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है? क्या पता है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ? हाँ करेक्ट, तो इससे आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर को नीचे लेके जाते हैं तो हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, या चलो उधर से ले आते हैं, एक एक करके करता हूं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन, अब एच स्क्वायर इधर नीचे ले आया इज इक्वल टू 1, तो उसको क्या कर सकते हैं? पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो होल स्क्वायर है इसको लिखने का तरीका होता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सर ये हो गया पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। हाँ बोलो सर। साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही चीज होती है ना? आइडेंटिटी, सॉरी बोलो क्या? सर साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही चीज होती है ना? हाँ एक ही चीज होती है। द रीजन व्हाई वी डोंट राइट इट लाइक दिस, क्योंकि ऐसा लिखेंगे ना तो हमको लगेगा थीटा का स्क्वायर है, बट थीटा का स्क्वायर नहीं हो, वो साइन स्क्वायर है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। थीटा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ साइन स्क्वायर चेंज हो रहा है, उसमें साइन की वैल्यू को स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है सर, आया? अगर हम लोग ने उसको होल स्क्वायर में लिया है तो थीटा का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा ना? नहीं ना, सो इट्स लाइक नहीं, बट उसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है सर, सो दैट्स व्हाई
एक ही में होगा। ये देखो साइन, ये साइन थीटा है ना, p by h इज साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी साइन 30 डिग्री की कोई वैल्यू है, अभी मैंने बताया नहीं वैल्यूज, तो जो भी वैल्यू होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू है x, तो साइन स्क्वायर साइन हाँ x स्क्वायर हो गया ना, साइन स्क्वायर ऑफ 30 स्क्वायर थोड़ी हुआ, 900 थोड़ी हुआ। ठीक है, मोहक सिंगल हटाओ यार उसको, ऐसा मत करो। हाँ ओके, आया समझ में? ठीक है sir. बोलो। So if you're having like trouble writing with the mouse, there's also an option to write the text you want to. Yeah. But why do you want to write here? अभी लिखना क्यों है तुमको? अभी कुछ पूछ थोड़ी ना हो, जब पूछूंगा तो। No, I'm saying that if you are having trouble like writing in the like. No, I don't have any trouble. I have got a old device here, man. Oh, acha. Yeah. So I'm not writing with mouse. You thought I'm writing with mouse. These are like expensive devices. नहीं, I've got the whole thing here. Okay. All right. ठीक है, हो गया? अरे माउस से इतनी अच्छी हैंडराइटिंग बनती है ऐसे थोड़ी। Okay, so sin square theta plus cos square theta. हाँ बोलो। Sir, doubt. All that we've written right now, like the identities and all, we have to remember them all, right? Yeah, of course. और इतना ज्यादा रिमेम्बर करना है कि कोई सो के उठ के तुमको पूछे ना तो भी एकदम सही आंसर आना चाहिए। अच्छा सर, इसका जो रिकॉर्डिंग होगा इन योर सबकॉन्शियस। हाँ सर, इसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो अवेलेबल होगा क्या, इसका रिकॉर्डिंग? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग हम YouTube पे डाल देंगे। So I had one question कि ये सारे formulas and identities को लेकर भी proving वाले questions को जाना पड़ेगा ना? समझा नहीं मैं क्या? Like using these identities and these formulas, we can solve the proving wala questions, right? That's the only way. That's the only way, but it requires a lot of strategy. You know, so once we come to the proving wale questions, I'll teach you how to approach them because it requires a lot of strategy. Formula तो इतने हैं, लेकिन कौन सा formula कहाँ पे लगाना है, कैसे आएगा, 20 steps लगेंगे उस formula, मतलब उसको तो it's like chess. Have you played chess? उसमें आगे के steps सोचने होते हैं ना, like this. You'll feel exactly like you're playing chess. That's what's going to happen. ठीक है? So will you also teach heights and distances wala chapter? I will. Once you do all this, heights and distances will become easy. But that's a different chapter, right? हाँ, that's a different chapter altogether. Both will require different parts of your brain. This will require a very different part of your brain. Height and distances will require visualization. You'll have to be able to visualize. Okay? चलो आगे करते हैं। तो ये हो गया पहला आइडेंटिटी। ठीक है? स्कूल में पढ़ा है ये सब? ओके, तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? वन प्लस tan square theta is equal to sec square theta. ओके, अब एक काम करते हैं, इसको cos से डिवाइड कर देते हैं। जो पहली आइडेंटिटी है इसको cos से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हो गया sin square theta प्लस cos square theta अपॉन cos square theta is equals to 1 upon cos square theta. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? sin square theta बाय cos square theta प्लस cos square theta बाय cos square theta is equals to 1 by cos square theta. sin square theta by cos square theta क्या हो गया? tan theta. square, very good, tan square theta प्लस ये हो गया 1 is equals to ये हो गया 1 upon cos square theta क्या हो गया? sec square theta. ठीक है, सो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, 1 प्लस tan square theta is equals to sec square theta. ठीक है, so ये हो is गई there second an identity where like we use 90 minus theta? हाँ, वो मतलब it will not be yeah, call it an identity. होगी मतलब okay. या मतलब वो यूज नहीं ना आएगा एग्जाम में, लाइक ऐसे आएगा भाई, बहुत आएगा, बहुत मतलब सब कुछ जो भी पढ़ाया अभी वो सब आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड आइडेंटिटी।
इसमें हर एक चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ सब आएंगे एग्जाम में। ठीक है, डन। और इसी को अगर तुम साइन से डिवाइड कर दोगे, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा बताओ मेरे को। करो ना, पहले डिवाइड तो करो डायरेक्टली। सर कैन यू रिपीट? ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमने इधर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया ना, अब हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, दो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो उसको। साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, कॉट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया थर्ड आइडेंटिटी। हो गया, तो क्या क्या हो गई आइडेंटिटीज बोलते जाओ। पहली हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर दूसरा हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये अलग अलग फॉर्म में आ सकती कहीं पे भी, तो बेसिकली तुमको हमेशा याद रहना चाहिए ये, ताकि कहीं पे भी दिखे तो तुम उससे कनेक्शन जोड़ सको। कहीं पे हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के फॉर्म में आ जाए, है ना, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाए। सो ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आ गया। अभी साइन कॉस की वैल्यूज भी मैं बता देता हूँ, वो भी याद कर लो। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, 0 डिग्री से चालू करते हैं, 0 डिग्री ऐसे कर लेते हैं, चलो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक टेबल बनाए तो चलेगा ना? हाँ वो टेबल ही जैसे बना रहा हूँ अभी, हम मेकिंग टेबल होंगी। तो ये थीटा की ये थीटा है, ये साइन थीटा निकालेंगे हम, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाते, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो यहाँ से ऐसे याद कर लेंगे, 0 1/2, 1/√2, √3/2, और 1। कॉस थीटा में इसका उल्टा चलता है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, टैन थीटा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो होता है 0, 1/√3, 1/√2, 1/√2 क्या हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये सारे वैल्यूज कहाँ से मिले हम लोग को? नापोगे ना तुम, ये देखो। So do we need to learn the derivations of all the values? नो, डेरिवेशन है ही नहीं इसका कुछ, मतलब इट्स यू कैन मेजर इट आल्सो ना इन टैन थीटा। No, like we won't be asked to like how we got all these values, right? No, you just need to remember these. Okay. हो गया, खत्म।
Sir, it's not defined, right? It's not infinite. Infinity is not defined. Isn't that the same thing? Yeah, okay. Done. हाँ क्या बोला ईशान जी, could you explain the second and third identity again? Okay. तो ये देखो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों तरफ कर सकते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो देख लो इधर कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से तो बस डायरेक्ट है ना, फिर यहाँ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो यू गॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल। क्या तो याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। खत्म। ठीक है, हाँ बोलो। तो हमें अगर कोसेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो उसका ही रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। हाँ पहले साइन का वैल्यू, हाँ तो एग्जैक्टली, तो ये जो साइन का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ओके शांशेक व्हाट आई आस्किंग बट वेयर डिड sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा कम फ्रॉम? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इन दिस वन, यहाँ पे ये है ना, देखो a प्लस b नहीं, I'm asking how did we get like sin square theta upon cos square theta is equal to tan square theta? Because okay, sin square theta upon cos square theta is equal to tan square theta कैसे आया ये जानना है तुमको, ये है ना। This can be written as sin theta का whole square upon cos theta का whole square, right? This can be written as sin theta upon cos theta का whole square, right? Sin theta upon cos theta is equals to tan theta का whole square। ठीक है, Okay. आया? Yeah. Sir, and sin by cos is equal to cot, ऐसा होता है? नहीं, sin by cos is equals to tan, cos by sin is equals to cot। Okay. Sir, like in this, sir, in the like this all identities, sir, it's we have to prove like in exam, like we have to show this like how do we get this identity. Yeah, of course they can ask you. Okay, sir. Yeah, ये रटना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी रटने का नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन डिराइव्ड। सो बस तुमको साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी सब कुछ हमने तो ऊपर से डिराइव किया है ना, सब कुछ समझ रहे हो। So what will be cot 90? अब देखो यहाँ पे 0, tan 90 क्या है, इंफिनिटी, तो cot 90 क्या होगा? 0. हाँ 0. करेक्ट। तो cot 90 will be cos theta upon sin theta is equal to 0 by 1 is equal to 0। ठीक है, आ गया सबको? तो अभी हमने क्या क्या सीखा, अब एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हमने सीखा भाई साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हमने क्या देखा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। 1 अपॉन टैन थीटा इज कॉट थीटा।
ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर वैसे ही कर लो, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटीज पढ़ी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको और तरीके क्या है लिखने के, इनको हम इन तरीकों से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा कॉस स्क्वायर यहाँ कहीं पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा तो उसको तुम कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अनदर थिंग दैट कैन बी रिटन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, है ना। You can also write it as tan square theta is equals to sec square theta minus 1. यहाँ पे लिख सकते हो cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. So we have like derived the relation between every trigonometric ratio in a right triangle, right? हाँ, but you know it's मतलब ये यूज होंगे सारे, ऐसे डिराइव करने नहीं आएगा कहीं, बट ये यूज like not हाँ। So अभी मतलब डिराइव करने भी आ सकता है, बट ये सब रटे होने चाहिए, ये रटोगे नहीं तो इसको ये सब देखोगे कहीं पे भी दिखेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, तो तुमको पता होना चाहिए, अच्छा इसको तो 1 लिख सकते हैं, 1 या हाँ। तो ये बेसिकली we might substitute, this can be substituted for this can be substituted for this can be substituted for this, हमको यूज करना है उसको, बेसिकली ऐसे ऐसे यूज करना है कि फायदा हो हमारा, लाइक दिस, ठीक है। अभी हम जब सवाल करेंगे तो आएगा, इसको पहले नोट कर लो अच्छे से और एकदम ध्यान से रट लो। I'll give you 5 minutes to go through it because I'm going to give you a lot of questions after this. मैं एक के बाद एक सवाल देते जाऊंगा, तुमको उसको बना के डालना है, आसान सवाल दूंगा मैं, उसके बाद वो जो तुम्हारा है आज गोल्ड स्टार वाले क्वेश्चंस वो भी तुमको करने, ठीक है। तो घर जाके करोगे तो आ जाएगा। नहीं हाँ, Do we have to upload this on the notes link? Yeah, of course. नोट्स मतलब वो होमवर्क वाला लिंक, या Sir, the P over here, it stands for perpendicular, right? Yep. So the homework we have to submit it today only, like the homework you have uploaded. नहीं, you can submit it throughout this week, जो लेकिन जो सबसे पहले जो लोग सबमिट करेंगे उनको वो मिलेगा ना, तो उनको अनलॉक होएगा। अच्छा, ओके।
और अगर तुम नहीं सबमिट करते हो तो तुमको चैलेंज लिखने के लिए नहीं मिलेगा बेसिकली। तो अगर चैलेंज लिखना है तो फिर सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो यू कांट राइट द चैलेंज। ठीक है, जब ये हो जाए रट जाए तो फिर बताना हाँ मेरे को, मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगा। And also, sir, like I've not, by mistake, I've not submitted the previous homework. So there's still time to submit that, right? It's still 11th July, right? Yeah, yeah. Okay, yeah. sir. Let me know जब हो गया, पूरा याद हो गया, then we'll take the questions. So by the way, did you hear the recent news? Ki scientists have found out ki coronavirus is airborne. Yeah, of course. It's even more like why they should. अभी तो बहुत we सारी should be तकलीफ even होगी। more. हो गया, चलें आगे। Okay. All right. Workbook. Introduction to trigonometry. All right, sharing now. Share. Chalo. You can see my this thing. Yes, sir. Chalo. Do 8.1.1. You said this books look different. Correct. We are changing our formatting now. Manasvi figured it out. We're changing the look of the book. So will we have science revision classes? Yeah, of course. Okay. You'll have 2-3 of those in fact. अभी तो साल चालू हुआ यार, अभी like you started what in April. अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। So we'll get these type of books. अब वो नहीं पता, I'll have to see इन लोगों ने कौन सी प्रिंटिंग के लिए भेजी है। But yeah. चलो पहला सवाल 8.1.1 फटाफट। Krish, Murtuza, give an answer. Okay. Ayush. Okay. Aradhya, Shardul, Navya. Good. Everybody is coming with answer. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे भाई tan a is equals to 4/3. इसका मतलब एनोटेशन किधर है?
क्या ओके सो अगर tan A इज इक्वल टू 4/3, तो अगर हम ऐसे एक ट्राइंगल बनाते हैं और कह रहा है tan A, इसका मतलब सपोज ये एंगल है A, तो tan A इज 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan A का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 4/3, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये 4 है और इसको हम लिख सकते हैं 3 है, और ये 4 है ये 3 है, तो ये क्लियरली 5 होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। तो अब बाकी सारी निकालने हैं, तो साइन A हो जाएगा। So, but can it depend on what we take as theta? Like we can also take like the upper part, like where 4 and 5 meet. Sure. So if you take So that, the answer will vary, right? No, it will not vary. See, if if you take this as A, so इसका perpendicular ये है ना, opposite upon hypotenuse, so इसका opposite ये है, ये हो गया 4 और ये हो गया adjacent 3, ये 4 3 5, तो इस केस में साइन A कितना होगा? इस केस में भी साइन A तो उतना ही होगा ना, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 बेसिकली tan A इज इक्वल टू 4/3, तो tan A तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इससे हमको पता चलता है परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो हाइपोटेन्यूज होगा 5, है ना। तो बस यहाँ से साइन थीटा निकालोगे, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5, कॉस A इज इक्वल टू 3/5, है ना। कोसेक A इज इक्वल टू 5/4, सेक A इज इक्वल टू 5/3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डन। आया समझ में सबको गाइस? डिड यू गेट इट? हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो यस सर, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. गुड, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। चलो अभी ये 8.1.4 इसको करो। 8.1.4 को करो। वैसे सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा 1/cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। करो ऐसे सॉल्व, बताओ फटाफट, चलो फटाफट। So 13 square is 169, right? 13 का square is 169, right? या कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, मेरे से पूछ रहे हो ये? सर सो ये सब क्वेश्चंस में डायग्राम्स भी बनाने होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए, तुमको समझने के लिए ठीक है। ओके, डन। ओके, तो इसमें भी ऐसे ही है। फिर 13 12, तो उसको कैसे करो? p इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 169 माइनस 144, तो 25।
इज इक्वल टू 5 है ना, तो p इसका हो गया 5, तो p आ गया, b आ गया, h आ गया, तो बस खत्म हो गया। फिर कैलकुलेट cos a कितना होता है, b by h इज इक्वल टू, ओ नहीं ऊपर वाला नहीं था, सॉरी नीचे वाला सवाल है ना। ओके sec थीटा हो गया, तो साइन से लेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू p by h, हाँ तो p by h क्या हो गया 5/13, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, tan थीटा इज इक्वल टू p by b 5/12। ठीक है, ऐसे करेंगे हम सवाल। आ गया समझ में, मिटा दूं, चलो लेट्स मूव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाक से बताओ ये वाला 8.1.8, तो जबानी आ जाएगा, जबानी। cos a मतलब b by h, तो p हो गया 3, तो p by b कितना हो गया 3/4, खत्म, आंसर है ना, डन, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 3/4 का बी आंसर है ना। चलो 8.1.9 क्या आंसर है, 8.1.9 आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हो, कैसे, कॉट, शार्दुल क्या हो गया, यूरेज हैंड कुछ हो गया, तो साइन ए जो है साइन ए इज 1/2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री है ना, तो कॉट 30 कितना हो गया, करेक्ट। Okay, we had to do like that. So I हाँ was वैसा भी calculating कैसे भी कर लो, Pythagoras. कहीं से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। देखो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, हाँ but ये ज्यादा easy process है। हाँ ऑफ कोर्स। ओके तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया है ना, तो कॉट a इज इक्वल टू 1/tan 30, तो 1/1/√3 मतलब √3, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, है ना। इसका और तरीका क्या है करने का, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक 1 प्लस, वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं ना, हाँ 1 प्लस वो कॉट एंगल्स स्क्वायर वाले। a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a, ये हमको पता है। तो कॉट, तुमको क्या निकालना, कॉट a, तो कॉट a इज इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a कितना हो गया, इसका साइन a है 1/2, तो कोसेक a हो जाएगा 2, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू √3। ये भी एक तरीका हो गया है ना। और दूसरा तरीका क्या हो गया, साइन a इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू p बाय h है ना, तो p इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 2, तो b कितना हो जाएगा, √(4 माइनस 1), तो √3 हो गया b है ना। तो कॉट a कितना हो गया, कॉट हो गया b बाई p, कॉट a इज इक्वल टू b बाई p इज इक्वल टू √3/1 इज इक्वल टू √3। हर तरफ से वही आंसर आया, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के, डन। सर थोड़ा सोचना पड़ता है, लाइक कॉट है तो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट्स, तो फिर उसको हाँ तो ये सब सोचना पड़ेगा ना अभी, आज अभी क्लास खत्म होगी, हाँ आज क्लास खत्म होगी, उसके बाद बहुत सारे वो जो भी हमने दिए उसको प्रैक्टिस करना, जरूरी नहीं है सिर्फ उतने ही करने, और उनके बीच बीच में जो सवाल है वो सारे भी कर सकते हो। हमने तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दिया, जितने सवाल करोगे उतना बेटर हो जाओगे तुम ट्रिग्नोमेट्री में, स्पेशली फॉर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ
वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। चलो tan थीटा ये वाला 8.1.1 ये वाला सवाल करो। So we need to find the value or just the ratio in a by b? नहीं, value in terms of a by b. Yeah, okay. चलो अब इसको आइडेंटिटी से करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यहीं से आ जाएगा। करो। Root of a square plus b square upon b. Correct. Good. Simra Khan is asking when are we going to get our books? वो printing पे गई हुई है। Printing takes around a couple of weeks because it is printing plus binding. And बरसात में binding में थोड़ा time लगता है। उसके बाद it'll be courier. So it'll take around two weeks or so. Okay. So sec theta की value क्या है? 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. और वैसे भी ऑनलाइन रहने के लिए मैंने तुम लोग को वो ट्रिक्स भेजे थे ना, जिससे तुमको वो स्ट्रेस कम होगा। यूज दो ट्रिक्स, ठीक है। तो अभी sec थीटा की वैल्यू अगर तुमको निकालनी है तो sec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, खत्म। तो हो गया रूट ओवर ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर, तो ये b हो गया, है ना। तो ये आंसर है। sec थीटा इज इक्वल टू दिस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। ये आंसर हो गया, ठीक है। आया सिमरा खान करेक्ट, गुड। नीचे वाला भी कहां से क्रिश अग्रवाल करेक्ट। हाँ ये है ना, ये देखो इसको, ये इतना है, इसको हमने क्या किया, रूट ओवर ऑफ, अब इससे एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर ऊपर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये ऊपर वाला रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया, और नीचे वाला रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर का होएगा बी। ओके, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर क्या होएगा, बी होएगा ना, क्या। तो इसका निकाल के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, b प्लस a अपॉन b। पूरा रूट निकाल के भी लिख सकते हैं ना। कैसे? लाइक b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ऊपर में, एंड क्या, सो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हाँ a स्क्वायर, नो नहीं, क्या बात, उसका पूरा उसका होल स्क्वायर ले सकते हैं ना, b प्लस a द होल स्क्वायर वाला। नहीं ऐसे कैसे होल स्क्वायर कैसे, ये तो b स्क्वायर नहीं, प्लस वो a नहीं, स्क्वायर है ये ना, अलग होल होता स्क्वायर है। कैसे लोगे तुम? वो मल्टीप्लिकेशन में होता है बट नॉट इन। तो इसको खोल नहीं सकते क्या? इसको नहीं, मुझे लगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लाइक b बाय a, b प्लस a अपॉन b। नहीं लिख सकते भाई, b प्लस a होल स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab ना। वो 2ab किधर गया? 2ab थोड़ी यहाँ पे 2ab होता तब उसको हम b प्लस a होल स्क्वायर लिख सकते ना। हाँ या सॉरी माय बैड। ओके डन, चलें आगे बढ़े। चलो ये 8.1.2 करो, 8.1.12 12th क्वेश्चन, ये वाला करो उसको। This question. Nice. Good. Everybody's getting it. Awesome. All right. So 8/17 is the answer. ठीक है, किसी को नहीं बना तो हाथ उठाओ। बन रहा है इसका मतलब, है ना। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब तुमसे बनने लग गए। चलो अब आगे के थोड़े सवाल मैं समझा देता हूँ, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी है तुम्हें, ठीक है।
चलो अभी 8.1.19 करो ये वाला क्वेश्चन. Do this question. Done. Sin 45 equal to cos 45. या क्या आंसर दिया नहीं तुम लोगों ने अभी तक? कितना टाइम हो गया यार, क्या कर रहे हो? sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2. तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना हो गया? नीचे एलसीएम हो गया 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना हो गया भाई? 6/4 खत्म इज इक्वल टू 3/2 आंसर. The calculation mistake. हाँ अभी आया 3/2. So you can also use identity for sin square 30 and cos square 30. sin क्या होता है? Sin, sorry. Yes, sin square 30 plus cos square 30 is 1, correct. तो इसको हम लिख सकते हैं sin square 30 plus cos square 30 will be 1 plus cos 45 will be 1 by नहीं 1/√2 का whole square. So this will also come out to be 1 plus 1/2 is equal to 3/2. ठीक है, डन. ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट. आया? क्यों नहीं बना यार तुम लोग से? चलो चलो ये करो 8.1.20 करो. अभी तक अगर तुमसे वाला नहीं बना तो ये वाला भी करो फिर. Do this 8.1.20. Yes, you have to memorize the values, Ishan. कैसे 0 कैसे हो गया? sin 30 plus cos 30 minus sin 60 plus cos 60 हो भी सकता है. देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? sin 30 कितना हो गया? 1/2 प्लस cos 30 कितना हो गया? √3/2 माइनस sin 60 कितना हो गया? √3/2 प्लस cos 60 कितना हो गया? 1/2. 1/2 प्लस √3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0. ठीक है, 0 हो गया आंसर. ओके, डन, गुड. सर इसके लिए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ आइडेंटिटी भी कर सकते हो, लेकिन इतना मेहनत क्यों करना है? देखो sin 60 कैन बी रिटन एज cos 90 minus 60 है ना, वैसे करके कर सकते हो. चलो अभी हम करेंगे ये. डू दिस क्वेश्चन. Yes, second part. So that the last part, is it multiplied to cos 45 or added? Yeah, multiplied.
Yep, finally people are giving correct answer, some people are giving wrong answer. 3 कैसे हो गया भाई? Answer is 4. कैसे हुआ देखो, 3 tan square 45, tan 45 is 1 है ना, तो 3 into 1 square plus 2 into sin 45 कितना है 1 by root 2, cos 45 कितना है 1 by root 2, बस कितना हो गया 3 into 1 square is 3 plus 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 हो गया 1 by 2 is equals to 3 plus 1 is equals to 4. That's your answer. Okay, मेरा 3 क्यों लिखा था मेरा? सर वो 4 3 के बाद में वो गलती से हो गया था, आई गॉट 4 हो गया। अच्छा ओके ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो गॉट इट। रुद्रा लेरी आया, ठीक है, उसका भी आंसर सही था, ठीक है ओके। हाँ अब ये सवाल करेंगे भाई 8.1.25 का पहला वाला करो, चलो डू दिस क्वेश्चन। अब ये तो पता ही नहीं है 54 36 ये कैसे निकालेंगे, तो इसका करने का तरीका है ये थीटा, अगर इसको थीटा इज इक्वल टू 36 मानोगे है ना, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 54 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाला है साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। तो ये हो गया पहले का आंसर 1। दूसरे का आंसर ये भी 1 हो गया क्योंकि cot 18 अपॉन ये भी हो जाएगा cot 18 है ना, और इसका sec 81 अपॉन ये भी sec 81 ही हो जाएगा है ना, तीनों का आंसर 1 होगा। एनीबडी हु डिडंट अंडरस्टैंड दिस हाथ उठाओ, मैं समझाता हूँ। ईशान, अंशुल, ओके ओके। रुद्रा कम इन, बताओ क्या नहीं समझ में आया, बताओ। सर द होल थिंग बताओ ना। Like for example इसको like can you refer to the values? For example, see, okay, let's see. Okay, I'll take the first question again. I'll take the first question again. So how can I write this? I can write this sin 36 upon 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 minus 36 लिख सकते हैं उसको। Can I write it as cos 90 minus 36? Cos 54 को can I write cos 90 minus 36? Is that okay? Yes. Yeah. Now cos 90 minus 36, cos 90 minus theta is equal to sin theta. Theta क्या है? 36. Yeah. So cos 90 minus 36 can be written as sin 36. Huh? Huh? Are you there, Rudra? Yeah. Okay. So cos 90 minus 36 can be written as sin 36. और ऊपर भी sin 36. कटा 1. ठीक है? Yeah, got it. Thank you. वैसे इधर क्या होएगा? cot 18 इसको हम लिख सकते हैं cot 18 प्लस सॉरी अपॉन tan 72 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 18. तो tan 90 माइनस 18 कैन बी रिटन एज cot 18. तो ये भी cot 18 बन जाएगा नीचे। वैसे यहाँ पे sec 81 अपॉन क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस 81. तो cosec 90 माइनस 81 कैन बी रिटन एज sec 81. ठीक है, आया? Sir, like we can also do opposite wala ki we can expand sin 36 sin 90 plus absolutely. Sin 90 minus 54. Yeah, absolutely. You can do that also. चलो do this question. 8.1.26 का पहला वाला करो. Do this question. Correct. Both answers are 0 है ना?
अभी आ रहा है समझ में, है ना? तो cos 15 will become can be written as cos of 90 minus 75. It can be written as sin of 75, sin of 75 minus sin of 0. Similarly ये भी 0, ठीक है, दोनों 0 हो गए। अभी आ रहा है ना समझ में मैं क्या बोल रहा था कि सब कॉन्शियसली सब कुछ याद होना चाहिए। और मैंने बोला था कि पहले 15 दिन हो सकता है तुमसे सवाल नहीं बने, ठीक है, बहुत स्ट्रगल करना पड़े, और तुम करते रहोगे 15 डेज तक क्वेश्चन, और फिर एक दिन ऐसा लगेगा कि बनने लग रहे, अचानक सारे सवाल बनने लग रहे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही होता है। अभी तो मेजर वाले क्वेश्चंस में हम आए नहीं, अभी मेजर वाले जो बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम पहुंचेंगे, फिर तुमको आएगा समझ में, ठीक है। होमवर्क कहाँ तक दिया हुआ है इसका? तुम्हारे उस पर होगा ना, डिक्लेयर करते हैं हम। अब से रोज सुबह 11 बजे रिजल्ट आएगा, रोज 2 बजे तुमको रिमाइंडर आएगा कि क्या क्या करना, और रोज शाम को 9 बजे एक इंस्पिरेशनल मैसेज आएगा। सर हर दिन होमवर्क मिलेगा? नहीं, पूरा वीक का होमवर्क रहेगा, लेकिन रिमाइंडर मिलेगा तुमको हर दिन। ओके। 8.1 to 12, एक मिनट रुको, 8.1 to 12 तुमको दिया हुआ है। अच्छा ओके, उसके बाद 8.2 से लेके 13 तक, तो 8.2 करते हैं फिर तुम्हारे लिए, है ना? चलो 8.2 पे पहुंच जाते हैं, फिर 8.3 से 10। ओके देखो, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर ब्ला 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 ब्ला, ओके ये सब तो तरीका भी मैंने समझा दिया। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो, 8.2.3, डू दिस क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं इसको, कुछ आइडिया किसी को? कुछ पहले दोनों तरफ साइन साइन लाओगे तभी अंदर वाली चीज को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। ये साइन है तो यहाँ पे भी साइन आना चाहिए। अब इसको साइन लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है? 90 minus theta। हाँ करो, फिर करो उसको, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा बताओ? वाह, लोगों ने आंसर निकाल दिया अभी से, awesome, गुड। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो कॉस को हमको साइन टर्म्स में आना है, तो हमने क्या सीखा है? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है a माइनस 26, है ना? तो उसको कह सकते हैं कॉस a माइनस 26 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फिर a माइनस 26, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a प्लस 26 हो गया ना, माइनस खोला तो उधर प्लस हो गया, इज इक्वल टू 90 प्लस 26 कितना हो गया? 611, है ना? तो साइन ऑफ 116 माइनस a और इज इक्वल टू साइन 3a, तो साइन 3a इज इक्वल टू साइन 116 माइनस a। अब अंदर वाली चीज को इक्वेट कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया 3a इज इक्वल टू 116 माइनस a, तो हो गया 4a इज इक्वल टू 116, तो a हो गया 116 बाई 4, 4 टू द 8, 9 10 11 36 9, तो आंसर हो गया a इक्वल टू 29, ठीक है। अब ये किस किस को समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, मैं समझाऊंगा। रुद्रा, मनस्वी, ओके कम इन बोथ ऑफ यू। यस सर। मनस्वी आर यू देयर? हाँ बताओ क्या डाउट है, बोलो। सर वो cos a माइनस 26 के बाद जो उसमें डाउट है, इज इक्वल देखो ना, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ तक क्लियर है। तो थीटा की जगह लिख दिया a माइनस 26, तो cos a माइनस 26 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह लिख दिया a माइनस 26 ब्रैकेट के अंदर। उसके ठीक है, बाद का अब यहाँ से खोल दिया इसको, अब ब्रैकेट खोल दो तो हो जाएगा 90 माइनस a प्लस 26, इसको खोल के आ गया 90 प्लस 26 हो गया 116 माइनस a, है ना? जो हो गया, इसी को सिंप्लीफाई किया तो हो गया साइन 116 माइनस a, किसकी जगह? cos a माइनस 26 की जगह।
तो cos a - 26 की जगह हमने हाँ sin 3a तो इधर गिवन है ना भाई। sin So, 3a इज इक्वल टू cos ये, तो cos को हमने sin में कन्वर्ट किया ताकि हम अंदर वाली चीज को इक्वेट कर पाए, इसलिए हमने इसको cos से sin में कन्वर्ट किया। अब हमने sin में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे sin 3a इधर लिखा हुआ था तो वही लिख दिया वापस, sin 3a equals to cos blah. So we supposed theta to be a minus 26. Yes. Okay. Okay. Okay, sir. Yes, sir. So, वही लिखा ना इधर से बनाया था इधर arrow. Sir, so हाँ, बोलो. 3a, why it's written that 3a is an acute angle? अगर वो नहीं भी लिखा रहता, so how would it make any difference? Because ये acute angle में तुम इसको equal ऐसे कर सकते हो। acute जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी सारी acute angle के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्ट्यूस वाले के बारे में तुम 11 में पढ़ोगे। अभी जो भी तुमने sin 30, 45, 60, 90 डिग्री तक पढ़ा ना, तो acute angle के लिए पढ़ा। Okay. So can we use cos 90 minus theta equals to sin theta? Say it again. What? Can we use cos 90 minus theta equals to sin theta? हाँ, तो इसको फिर यहाँ पे चेंज करोगे तुम, ठीक है? तो sin 3a को क्या लिख सकते हो? cos 90 minus 3a. But that will be complicated. So नहीं, it won't be really complicated. अच्छा. तो इसको वो भी आसानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a minus 26, है ना? तो ये जो सवाल है इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने। तो अब ये cos सेम हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 minus 3a is equals to a minus 26, है ना? तो 3a उधर गया तो is equals to 4a is equals to 90 plus 26 is equals to 116, सेम हो गया, ठीक है? वो भी लिख सकते हो, वो आसान है इनफैक्ट, ठीक है? गॉट इट गाइस? आगे बढ़े, चलो बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। So all these are homework. हाँ, ये सारे होमवर्क हैं, बट ये तो आसान है। ये टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी तुमको सिखाया ना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बन जाएगा। सो ये 8.21 से लेके 13 तक हमने दिया हुआ है, तो ये भी तुमसे बन जाएगा। अब मैं 8.3 में चले जाता हूँ। 8.3, बट इसमें जितने मिसलेनियस में बड़े अच्छे सवाल हैं, तो मिसलेनियस भी कर लेना। ये तो हमने जो होमवर्क दिया है वो बेयर मिनिमम होमवर्क है, और ज्यादा आगे करोगे तो और भी बेटर रहेगा। 8.3 ये देखो यहाँ से, अब ठीक है। नीचे चला गया। चलो अब मैं सिखाता हूं कि ये देखो, अभी जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, प्रूव दैट ये ब्ला ब्ला 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कोस ए। इस तरह के सवाल जो हैं ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो इसका एक बेसिक सवाल लेते हैं पहले। ये वाला सवाल करेंगे। चलो तो अभी मैं खुद से करके बताता हूँ ये वाला, फिर सीख जाएंगे, ठीक है। अभी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन इज इक्वल टू 2 से, ये प्रूफ करना हमको। आपको ये डायरेक्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है हमको क्या करेंगे, चलो एलसीएम ले लेते हैं इसको, ठीक है। उसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो गया, मतलब मल्टीप्लाई, और ऊपर इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली हमने इसको। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। तो चालू हम कर रहे हैं एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू, अब और खोलेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस
2 sin A upon. So instead of this, we can directly write 1 plus cot A plus 1 plus tan A, क्योंकि cos A by sin A है, so 1 plus cot A plus 1 नहीं plus यार tan ऐसे, A. अरे ये तो एकदम बेसिक मिस्टेक होगी ना. A upon B plus C cannot be written as A by B plus A by C. ऐसे थोड़ी होता है. अच्छा हाँ, सॉरी. हाँ. ठीक है. A plus B upon C can be written as A by C plus B by C. ऐसे मिस्टेक मत करो, ठीक है. हाँ सॉरी. ये हो गया. अभी ये क्या हो जाएगा, cos square A plus sin square A कितना हो गया, 1. फिर ये वाला भी एक अलग से 1 plus 2 sin A है ना, अपॉन 1 plus sin A into cos A. ठीक है. अब ये 1 plus 1 क्या हो गया, 2 plus 2 sin A अपॉन 1 plus sin A into cos A. इसको हम नीचे खोल नहीं रहे क्योंकि हमको होप है कि कुछ कटेगा बाद में, ठीक है. इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 plus sin A अपॉन 1 plus sin A into cos A. अब दिख रहा है कुछ होते हुए, हाँ. यस ये 1 plus 2 sin A upon 1 cos A हो जाएगा. हाँ, तो फिर ये बच गया, तो ये हो गया 2 upon cos A. तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 sec A. आया. तो ऐसे करना होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, हमको पता नहीं था ऐसे करने से आएगा कि नहीं आएगा. जितने क्वेश्चन तुम करोगे तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे वो कर सकते हैं. आई टोल्ड यू राइट, इट फील लाइक चेस एंड टू बिकम मास्टर ऑफ दिस यू हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चन. तो जितने हमारे क्वेश्चन हमने वर्कबुक में दिए उनको धीरे धीरे लेवल वाइज करते जाओगे, बहुत मजा आएगा, क्योंकि लेवल वाइज करोगे तो तुमसे बनेगा, ठीक है. और जो हमने बेयर मिनिमम होमवर्क दिया हो तो बेयर मिनिमम उतना तो करना ही है, लेकिन अगर तुम लेवल वाइज सारे सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व कर लोगे, मिसलेनियस इंक्लूडेड, तो तुमको एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और तुमसे सवाल बनने लगेंगे, ठीक है. आ रहा है समझ में? So one doubt, in the second step, yeah, cos square A plus sin square A. So how do we know that it's 1? ऐसा कोई फॉर्मूला था जो आइडेंटिटी है ना, पहली आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी? One second, let me find it. Sir, will there be a question where like we have to expand both LHS and RHS and then हम लोग prove करेंगे कि LHS is equal to RHS? मतलब जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, we just expanded LHS, we didn't touch RHS, but कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें we नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तुम डायरेक्टली LHS से चालू करोगे और RHS पे पहुंचोगे. Okay. Yeah, Rudra, what were you saying? Nothing sir, it's identity मिल गई मुझे, वो ठीक है, समझ में आ गया. आ गया. तो उसके लिए पहले सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी जरूरी है, सब बाहर करके रखना पड़ेगा. Where did 2 sin A come from? 2 sin A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. So 2AB is 2 into 1 into sin A is equal to 2 sin A. Okay. और किसी को डाउट कोई? ओके, चलो अब अगला ये वाला करें, 1 plus sec थीटा वाला, ये वाला करके देखो. एक्चुअली नहीं मत करो, ये डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी. और कौन सा करें, और थोड़े आसान वाले करते हैं, रुको. पहले इस तरह के क्वेश्चंस पहले कर लो. चलो लेवल 2 में देखते होंगे थोड़े बहुत. ये देखो, ये वाला दिख रहा है अभी, ये वाला 8.2.71, ये करो. चलो इसको ट्राई करके देखो. अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से हो सकता है ना. अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 1 प्लस कॉस थीटा. तो ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो? तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजी आनी चाहिए.
1 माइनस कॉस थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा काम का है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा करने से बनेगा ना, है ना। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब दिख रहा होते हुए कुछ, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा ऊपर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों कटेगा तो नीचे साइन थीटा बचेगा। इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos theta by sin theta is equals to cosec theta plus cos theta। आया? कैसे बनता है देखा? Got it? ठीक है, तो आज की क्लास अब खत्म। अब प्रैक्टिस करो, और कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे ना तुमको, तुम ग्रुप पे लिख दो, somebody will help you out। And the only trick to be able to do the trigonometric questions is to practice a lot of questions by thinking yourself। अभी आंसर देख देख के भी करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आया तुमको समझ में सब कुछ, ठीक है। चलो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. All Have right. a nice day. You too. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Have a nice day, Thank sir. you, sir. Yeah. All right. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice All day. right. You too. Bye.